Assalamualaikum. How are you all? Fine. Raise your hand. Can you hear me? Done. Okay. Mahmood Noor Shamsi, turn on your video. Abdullah Ayaz, please turn on your video. Rayan, turn on your video. Mubarra, please turn on your video. Hope you all are fine. Class Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start chapter number 5. Early civilization in subcontinent. ठीक है, subcontinent. जी Zainab, you want to ask any question? टीचर चैप्टर 4 क्वेश्चन आंसर्स जी वो भी पेंडिंग पे हैं. When they will confirm it from office, then you have to collect from the office. School office से you will collect. ठीक है? ओके I will let you confirm करके I will inform you. जी. Early civilization in subcontinent. जो history divides the development of man into different stages. ठीक है? Stone Age है, से स्टार्ट हो रही है. सिविलाइजेशन क्या होती है? रहन सहन. द पीपल, हाउ दे आर लिविंग इन अ प्लेस. सब कॉन्टिनेंट कौन सा पार्ट है? इंडो पाक, पाकिस्तान एंड इंडिया. ह्यूमंस की जो है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में, आपकी बुक में 5 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, बट ऑल इट हैज 4 स्टेजेस. फर्स्ट इज स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, थर्ड वन इज आयरन एज, fourth one is modern age. Look here in this picture, you can view that. This is, they are showing human beings. इनके हैंड्स में क्या है? इट हैज स्टोन. फिर आगे से यहाँ पे आयरन एज और कॉपर एज को उन्होंने सेपरेट कर दिया है. फिर ब्रॉन्ज एज आ गई है. पहले ब्रॉन्ज एज आ गई है, उसके बाद कॉपर, देन आयरन, देन मॉडर्न एज. मॉडर्न एज में यू ऑल आर यूजिंग लाइक पीसी और कंप्यूटर्स. फर्स्ट एज कौन सी है? First age is Stone Age. Why we call it Stone Age? It is called the Stone Age because people used to make the tools, weapons made of stone. All the things were made of stone. Almost the Stone Age was 3.5 million years long. 3.5 million years, not a small age. Started almost 2.5 million years age and ended completely in 2500 BC. But the people, how the humans were living in the Stone Age. The people of Stone Age lived by hunting things or gathering. What they were gathering, they gathered the food, ठीक है ना, खाने के लिए, because they need food to survive. They were gathering or collecting the food, and they protect themselves from the wild animals, because उन्हें एक ही danger होता था कि wild animals are living, so they have to protect themselves. Where they all were living. If we look, Stone Age के people कहाँ रह रहे होते थे? They used to live in caves. उन्होंने caves बनाए हुए थे. अब वो caves भी थे और in plain areas वो temporary camps भी बनाते थे. यहाँ पे आपको camps show हो रहे हैं ना? They have only one fear, and that is wild age, wild animals, and then they were making camps. And camps किससे बन रहे थे? एनिमल्स की स्किन से बना रहे थे. दे वर मेकिंग कैंप्स फ्रॉम द एनिमल स्किन. और अपने केव की वॉल्स जो थी, जब वो केव में रह रहे थे, ये तो प्लेन्स में दे वर मेकिंग कैंप, और जो प्लेन्स में नहीं रह रहे थे वो केव्स में रह रहे थे. तो केव की वॉल पे वो क्या कर रहे होते थे? स्टोन से ना, स्टोन एज में वो पेंटिंग कर देते थे.
in that area of cave where they are not living. कोल्ड वेदर होता था स्टोन एज में तो वो एनिमल्स की स्किन से ही अपनी बॉडी को रैप कर रहे होते थे. ब्रॉन्ज एज पे आ जाए, जिस तरह ब्रॉन्ज स्टोन एज में द पीपल वर लिविंग एंड मेकिंग थिंग्स थ्रू द स्टोन्स. अब स्टोन एज में जो एक इम्पोर्टेंट बात है ना, स्टोन एज में ही लाइफ में लैंग्वेज डेवलप हो गई हुई थी, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, and communication mode they have is language, so they have their own language. ब्रॉन्ज एज जो है अब सेकंड स्टेज, ठीक है. फर्स्ट स्टेज इज स्टोन एज, सेकंड स्टेज इज ब्रॉन्ज एज. आपकी बुक में ब्रॉन्ज एंड कॉपर एज को सेपरेट किया हुआ है, बट ब्रॉन्ज एंड कॉपर एज इसलिए नहीं सेपरेट हो सकती. जो ब्रॉन्ज होता है वो मेड ऑफ कॉपर एंड टिन होता है. ब्रॉन्ज कैसे बन रहा होता है? ब्रॉन्ज कॉपर एंड टिन को मिला के मिक्सचर बन रहा होता है, एंड विच इज गुड देन कॉपर. Bronze Age is a period when people made tools from LA. LA is a mixture material that is made with copper and tin. यहाँ पे आप देखिए, यहाँ the people they are living, उनके कौन से हाउस है? राउंड शेप्ड हाउसेज हैं. पहले स्टोन एज में they were living on camps और caves. In Bronze Age they have made, ये इन्होंने बनाए हुए हैं, वुड से ही बनाए हुए हैं, they from the wood, round shape houses. Pottery है. The tools they were using, here are the tools. क्योंकि स्टोन एज से मोर ऑर्गेनाइज्ड पीपल हो गए थे. पीपल बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड इन द ब्रॉन्ज एज. द न्यू मेटल टूल ब्रॉड सोल्ड कर रहे थे लोग. दे स्टार्ट ट्रेडिंग एंड फार्मिंग, ठीक है. ब्रॉन्ज एज में दे हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड फार्मिंग. अब नेक्स्ट हो जाती है आयरन एज. इफ यू लुक हियर, आयरन, ब्लैक स्मिथ का टाइम स्टार्ट हो गया. In the Iron Age, farming got improved because people started domesticating animals. और उनके टूल्स भी शार्पर एंड स्ट्रॉन्गर हो गए थे. ब्रॉन्ज एज से टूल्स शार्पर एंड स्ट्रॉन्गर थे. उसके बाद ग्रेट वैरायटी ऑफ थिंग्स थी. फिर इन्होंने सॉलिड वॉल्स एंड रूफ्स बनाना स्टार्ट कर दी. ये अब आप इनकी रूफ्स देखें. ब्रॉन्ज एज की रूफ से सॉलिड है ना. लुक हियर, है ना. लिविंग स्टाइल चेंज हो गया है. हाउसेज आर वेल ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज हो गए हैं. उनके बिल्कुल सेंटर में, इन द सेंटर ऑफ हाउस, दे, यहाँ पे फायर होती थी. बिल्कुल हाउस के सेंटर में, ये जैसे हाउस है इसकी बिल्कुल टॉप सेंटर पे, इनर साइड पे फायर कर रहे होते थे. इससे दे मेक आयरन भी करे हैं, और कुकिंग का भी सारा कुछ वो सेंटर में स्टोव होता था. दे हैव स्टोव इन द सेंटर. जी जैनब. टीचर, ये होता क्या है? ब्राउन एज, आयरन एज, स्टोन एज, ये होती क्या चीजें क्योंकि हैं? देखें मैन की डेवलपमेंट स्टार्ट से ही तो ऑल ऑफ यू, आप सब उठते हो तो यू हैव सीन कंप्यूटर्स, लैपटॉप, ठीक है ना. वी आर लिविंग इन मॉडर्न एज. हम कौन सी एज में रह रहे हैं? वी आर लिविंग इन मॉडर्न एज. बट स्टार्ट से जब ह्यूमन बीइंग्स ने स्टार्ट किया था तो उनकी डेवलपमेंट को जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, लोग हैं जो ह्यूमंस पे रिसर्च कर रहे होते हैं, उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है. पहले तो आपके पास घर में चूल्हे और आपके पास फार्मिंग और सब कुछ नहीं थे. ये कैसे आए हैं? ये टीचर, कैसे आपकी आवाज कट कट के आ रही है. ओके, अब ठीक आ रही है आवाज? अब ठीक आ रही है आवाज? रेहान, my voice is clear or it's breaking?
टीचर जी टीचर नाउ क्लियर. नाउ क्लियर. ओके डन. यस टीचर. जी वी वर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मैन. ठीक है, एक इंसान कैसे डेवलपमेंट, उसकी सिविलाइजेशन कैसे इम्प्रूव हुई है, उसका रहन सहन, द वे दे आर लिविंग. ठीक है, नाउ वी हैव फैक्ट्रीज, वहां पे कॉटन में क्लोथ्स बन जाते हैं, बट पहले तो ह्यूमन बींग्स के पास ऐसे नहीं था. जैसे स्टोन एज में वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके फिर उनके वो करते थे, फिर उनके क्लोथ्स बना रहे थे, उनके हाउसेस एनिमल्स की स्किन के बने हुए थे. यहाँ दे वर लिविंग इन केव. ब्रॉन्ज एज के अपने हाउसेस देखे हैं, वुड के बने हुए हैं. ये राउंड शेप वुड है. ठीक है, आपको तो मिल गई हैं, आप तो ईंटें, आपके पास फैक्ट्री से ईंट्स आती हैं, यू मेक योर हाउसेस. बट फ्रॉम बिगनिंग हाउ पीपल वर लिविंग. सॉलिड वॉल्स और रूफ्स थी आयरन एज में. इन द आयरन एज हाउसेस टुक मोर डिफाइंड शेप. वन रूम होम्स होते थे ऑब्वियसली, एक ही रूम था पूरे घर में, और मड और वो ट्विंग्स के मिक्सचर से बने होते थे. ड्यूरिंग आयरन एज, जाहिर है आयरन उन्होंने इन्वेंट कर लिया हुआ था कि किस तरह से बनना है. अब क्या हो रहा था, मोर पीपल कुछ ऑन अ मेटल, प्लोइंग हो रही थी, जो क्रॉप्स के लिए नहीं हो रही होती है, ग्रो हो रहे थे मोर क्रॉप्स. सम पीपल इन्वेंटेड कॉइन्स, कॉइन इन्वेंट हो गए थे. कॉइन इन्वेंट करने से क्या हो गया था, इजी ट्रेडिंग हो गई थी. इफ दे वांट टू बाय और सेल एनीथिंग दे कैन यूज द कॉइन्स. शील्ड्स एंड हेलमेट्स बन गए थे टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. In Iron Age is a part of prehistoric. On that time before human used writing. ठीक है, आयरन एज कैसे खत्म हो गई, जब राइटिंग शुरू हो गई, जब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया तो आयरन एज खत्म हो गई. Therefore the Iron Age ended once writing become widespread. जब राइटिंग आ गई, जब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया तो कौन सी एज आ गई, मॉडर्न एज. We are living in modern age. We have cinemas to view the movie. We have radio system. We have television. We have computer. Technologies have changed our life. अब हम stone age और उनमें नहीं रह रहे. We have food in our houses. फार्मिंग हो रही होती है, हम बाय कर रहे होते हैं और सेल कर रहे होते हैं, बस बाइंग सेलिंग एंड ट्रेडिंग रह गई अब. ठीक है ना, वी हैव ऑल द फैसिलिटीज. अब अर्ली सिविलाइजेशन में वी हैव स्वान वैली. फर्स्ट स्वान वैली कौन कहाँ पे है, वेयर इट इज, इट इज लोकेटेड नियर रावलपिंडी. रावलपिंडी के पास है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, बहुत अच्छी एस्टेब्लिश हुई सिस्टम है, जिसमें सोशल स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन दोनों चीजें अवेलेबल है. ठीक है, लोग एक दूसरे से मिल कैसे रहे हैं, बात कैसे करें, दिस इज सोशल स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. स्टोन टूल्स हैं, क्रूड वेजेस, स्टोन टूल्स यूज कर रहे हैं लोग. क्रूड वेजेस हैं, क्रूड वेजेस क्या होती हैं, यहाँ पे अगर आप देखें वुड कटिंग के लिए दे आर यूजिंग, ये है ये जैसे वुड कट करने के लिए इन्होंने ये एक शेप के वेज यूज करे हैं ना, दिस इज कॉल्ड क्रूड वेज. चॉपर्स हैं, चीजों को ग्राइंड करने के लिए दे आर यूजिंग चॉपर्स. फिर उनकी केव पेंटिंग है, वो अपने हाउसेस में केव पेंटिंग करते रहे हैं, केव में पेंटिंग्स करते रहे हैं. फिर एरोज यूज करते रहे हैं. फिर वो बोन के टूल्स, हड्डियों के जो टूल्स बने होते हैं ना, बहुत से टूल्स हड्डियों से बने होते हैं, उनको यूज करते हैं. फिर एंटलर्स और आइबिक्स क्या है, आइबिक्स क्या है, ये एनिमल आपने कभी देखे है आइबिक्स, ठीक है ना, जू में भी देखा होगा आपने आइबिक्स. इसके जो सींग होते हैं, जो सर पे इसके सींग नहीं है, ठीक है, वो मिले हैं इन लोगों को. इज इट क्लियर, एनीवन हु इज कंफ्यूज यहाँ पे, आई एम अनम्यूटिंग यू ऑल.
Anyone who has any question? No teacher. Seriously? स्वैन वैली सबको क्लियर है? Yes teacher. मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिकल पोल में क्या फर्क है? टीचर टीचर पिछले तक टीचर जी जी जो मुझे आपसे ना पिछले चैप्टर का एक एसएसटी का सवाल पूछा था कि मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिक पोल में क्या फर्क है? मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल्स है ना हमारे। पोल आप क्लाइमेट वाइज कह रहे हो पोल्स के, आपको किस तरह पूछना चाह रहे हो? बिकॉज अगर क्लाइमेट वाइज आप करो, हमारे पास पोल्स कौन से हैं? पोल्स तो हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ पोल है ना। द अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस आल्सो। ओके ठीक है। और क्लाइमेट वाइज हम लोगों ने उनको पोल्स में जब डिवाइड किया था, तो हमारे पास कौन से ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट एंड पोलर क्लाइमेट्स थे? यू आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3 और 4। और अगर आप पोल्स उसकी करो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, वो हमारे फिजिकल मैप के मैपिंग के 2 पार्ट्स है ना। ओके टीचर, थैंक यू। वेलकम। टीचर जी टीचर इसका क्या मतलब है? एंटेलर्स ऑफ आइबेक्स, ये इसका देखिए, क्या मतलब ये है? आपको एनिमल नजर आ रहा है आइबेक्स? ये आपने जू में भी देखा हुआ है? यस देखा हुआ है ना। यस इसके जो टीचर। सींग हैं, एंटलर्स क्या हैं? जो उनके सींग नहीं सींग। होते, तो वो कह रहे हैं जी उनको वो चीजें मिली हैं, क्योंकि जो जोग्राफर्स होते हैं, जो सर्वेयर्स होते हैं ना, एंकोलॉजिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, एंकोलॉजिकल डिस्कवरीज जो कर रहे होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो अपना एक स्टोन भी ढूंढने के लिए समटाइम उनकी पूरी लाइफ गुजर जाती है, वो ढूंढते रहते हैं। एंकोलॉजिस्ट जो पर्सन्स होते हैं, जो लोगों के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, अर्ली सिविलाइजेशंस को, कुछ लोग आप देख रहे होते हो ना, बैठ के वो चीजें साफ कर रहे होते हैं और वो रिसर्च कर रहे होते हैं उनपे। जी एनकोलॉजिस्ट को वहां से क्या क्या चीजें मिली हैं स्वान वैली से, क्योंकि अब वो वहां पे स्वान वैली तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती ना। अब तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, अब तो वो ऑब्वियसली रून हो गई हुई है, डिस्ट्रॉय हो गई हुई है। अब कोई वैली वहां पे उसके कोई सिर्फ साइंस ही मिलेंगे ना एनकोलॉजिस्ट को। वो वहां से उन्हें कौन कौन सी चीजें मिली हैं, उनमें से स्टोन टूल्स हैं, स्टोन के टूल्स बने हुए हैं। ठीक है टीचर। जी जी टीचर मैंने पूछा था टीचर, ये जो ब्रोंज एज के हैं जी लोग थे, ठीक है, वो हंट एनिमल्स को करते थे? जी, एनिमल्स को हंट करते थे। वहाँ पे ज्यादातर वाइल्ड एनिमल्स। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वाइल्ड एनिमल्स हमारे फर्स्ट स्टेज में ज्यादा थे। जो ब्रॉन्ज एज है ना, जैसे जी वालेकुम सलाम, गिव मी 1 मिनट बेटा। जैसे हमारे अभी हम आगे पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये हमारी ब्रॉन्ज एज की है। इसमें आपके पास यूनिकॉर्न्स भी अवेलेबल थे, आइबेक्स भी थे, बुल्स भी थे, एलिफेंट्स भी थे, हॉर्सेस भी थे, ऑब्वियसली शीप्स भी थी। ठीक है ना। अब वो एलिफेंट को हंट तो नहीं करके खा सकते ना, ऑब्वियसली उनके लिए कोई शीप, काऊ, ये सब एनिमल्स थे। ठीक है। ब्रॉन्ज एज में हम सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आगे जी वालेकुम सलाम। हु वाज सेइंग सलाम? जी जी अब्दुल्ला याज। I did not see this. जी I did not see this deer in zoo. द डियर इन जू, आई हैव सीन आइबेक्स। इसको उर्दू में हम बारहसिंगा कहते हैं। किसी ने देखा है? सबने देखा होगा, जू में होता है। लेकिन मेरी एक बुक में लिखा हुआ है कि स्टेज है। क्या है? ये देखें, आइबेक्स है ना। तो बेटा स्टेज भी हमने देखा हुआ है जू में। ताहा, टर्न ऑन योर वीडियो।
Alifia, please turn on your video. Imran Ali, turn on your video. जी, स्वान वैली सिविलाइजेशन ये रावलपिंडी के पास है और यहाँ पे बहुत सारी अब लेक्स भी हैं और रिवर भी है. Who will start reading? Raise your hand. कौन रीडिंग करेगा बुक से? बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में. फातिमा, यू वांट टू रीड? ओके, आपने चैप्टर स्टार्ट से रीड करना है. अर्ली सिविलाइजेशन इन सब कॉन्टिनेंट. History divides the development of man into different stages like the Stone Age, Bronze Age, Copper Age, Iron Age, and Modern Age. The Soyan Valley. जी, स्टॉप हियर. यहाँ तक सबको क्लियर है ना? हिस्ट्री ने डिवाइड किया है ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफरेंट स्टेजेस में. स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, आयरन एज एंड मॉडर्न एज. इसकी बुक में कोई डिटेल नहीं है. देयर इज नो डिटेल ऑन द बुक, बट आई वांट यू ऑल कि आप सबको पता हो स्टोन एज में व्हाट क्या डिफरेंस क्या है इन सब एजेस में. जी फातिमा, यू कैन रीड फर्दर. The Soyan Valley. Assalamualaikum teacher. Assalamualaikum teacher. जी वालेकुम सलाम. Located near Rawalpindi, the Soyan Valley civilization was a well-established system with a जी, name yourself. teacher. जी जी, you can ask. Raise your hand, beta. Zoha has raised. Ji, Abdullah Ayaz. Ji, Zoha, unmute yourself. Yes, teacher. Ji, Teacher, now can I read? जी जोहा आप रीड कर लें. History divides the development of man into different stages. बेटा यहाँ से Like करेंगे. the द स्वान वैली लोकेटेड नियर रावलपिंडी. teacher, मुझे लगा शुरू से करो. This okay. This Swan Valley is located All near of you Rawalpindi. hand The down, Swan girls. You Valley will also study. You will also read. civilization was a well-established system with a social structure and communication. Stone tools, red this choppers, cave paintings, arrows, bones, Wait. and blood of ibex have been found at this site, which leads back to the Stone Age. Located at And so many students have raised hand. Obviously, one can read at once. That's obvious. Otherwise, I will not allow you. जी, स्वान वैली में आपको कोई confusion है? रावलपिंडी के करीब लोकेटेड है, वेल एस्टेब्लिश्ड है, गुड कम्युनिकेशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर इट है. स्टोन टूल्स हैं इसमें, क्रूड वेजेस हैं, चॉपर्स हैं, केव पेंटिंग है, एरोज, बोन टूल्स एंड एंटलर्स ऑफ आइबेक्स. ये मिले हैं किनको? एंकोलॉजिस्ट्स को. अब हम टेक्सला पे आ रहे हैं. टेक्सला लास्ट 10 मिनट्स में आई विल टेक क्वेश्चन आंसर सेशन बिकॉज सारा लेक्चर फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा. टेक्सला लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर. नेम योरसेल्फ बेटा, क्योंकि मैं आपको ढूंढ रही हूँ. टीचर यू आर सेइंग एंड जी हु आर यू? नेम योरसेल्फ. अनम्यूट कौन कौन से हुए हैं? जी इमरान, फातिमा म्यूट कर लें. इमरान जी, जोहा. Who want to ask a question?
जी, टेक्सला कहाँ पे है? टेक्सला इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स फ्रॉम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के पास है ये, 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। टेक्सला डेट्स बैक, हमें किस चीज की डेट बैक करवा रहा है? टू द 6th सेंचुरी बीसी। अर्ली एजेस में एसी एंड बीसी थे डेट्स के लिए ना। इट यूज टू बी एन इम्पोर्टेंट सेंटर, किन किन का था? बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट लोगों का, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म इन द टाइम्स। बुद्धिज्म कौन है? जो बुद्धा को मानते हैं। हिंदुइज्म कौन है? जो हिंदू हैं। ठीक है, दो डिफरेंट रिलीजन्स हैं। कौन से थे? बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। किन लोगों के सेंटर था ये टेक्सला? यहाँ पे ज्यादा लोग बुद्धिज्म के और हिंदुइज्म के रह रहे थे। कहाँ पे ये है लोकेटेड? कहाँ पे है लोकेटेड? स्ट्रेटेजिकली ऑन द रिवर इंडस एंड कनेक्ट टू सिल्क रूट। रिवर इंडस के पास है और सिल्क रूट को कनेक्ट भी कर रहा है। इट इज बिलीव टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन और ग्रीक। इसकी जो सिविलाइजेशन, जो तहजीब है, वो पर्शियन लोगों से मुतासिर होके है कि उन्होंने उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं ज्यादा, और ग्रीक्स के लोग उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस सिविलाइजेशन, टेक्सला की जो सिविलाइजेशन है, वो पर्शियन और ग्रीक लोगों से इन्फ्लुएंस हुई है। पर यहाँ पे रह कौन लोग रहे हैं? बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। बुद्धा और हिंदू रह रहे हैं थे। This city is considered to be an economic and cultural center of its time. आप देखिए ना, वेल अरेंज्ड होम्स हैं ये। आप टेक्सला के घर देखें तो आपको लग रहा है कि वाकई अरेंज लोग हैं। इन्होंने घर भी ब्रिक्स के बनाए हुए थे। फिर उसके बाद इन्होंने स्टूपास भी बनाए हुए थे और टेम्पल्स भी बनाए हुए थे। टेम्पल्स कौन सी प्लेस होती है? मंदिर, जिनको हम मंदिर कहते हैं ना, जहाँ हिंदू इबादत गाह होती है। जैसे हमारी मॉस्क होती है ना, वैसे हिंदूज के टेम्पल्स होते हैं। और जो बुद्धिज्म होती है, उनके स्टूपास बनी होती है, उनके लिए वो इबादत गाह है, जैसे हम लोगों के लिए। वेल प्लान्ड आर्किटेक्चर दे हैव। The city is considered to be an important economic and cultural center for its own time. ठीक है, इकोनॉमी अगर रन हो रही है, डेफिनेटली पीपल बाय सेल कर रहे होंगे, फार्मिंग भी हो रही होगी। ठीक है ना, क्रॉप्स ग्रो हो रही होंगी डेफिनेटली, तो ही तो वो लोग बाय और सेलिंग कर रहे होंगे। ऑफ इट्स टाइम एंड वेल प्लान्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर कैसे है? उन लोगों के हाउसेस किस तरह के बने हुए हैं? वेल प्लान्ड है। द सिटी हैड हाउसेस, विंडिंग स्ट्रीट्स, हवादार गलियां, टेम्पल्स हैं एंड स्तूपास है। मैंने आपको टेम्पल्स एंड स्तूपास का बताया। मंदिर हैं और स्तूपास बुद्धिज्म के इबादत गाह हैं। द सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय कैसे हो गई थी सिटी? इन द फर्स्ट सेंचुरी बाय खुशाल। कुशान जब सेंट्रल एशिया में आए थे, तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी, तबाह कर दी थी ये वाली सिटी। ये अगर आप अपनी बुक में देख रहे हैं, उनके लिविंग्स के भी बने हुए हैं ऑन पेज नंबर 23। ये आप उनके हाउसेस देखें कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड और हुए हैं। फिर इनमें यहाँ पे आपको नीचे वाली फूड वाली में आपको आ रहा है कि दे आर फार्मिंग। ठीक है, उनके पास ट्रैक्टर्स भी हैं और प्लोइंग भी हो रही है। सेकंड वाली पिक्चर में यहाँ पे प्लो भी कर रहे हैं। डन। अब आ जाए मेहरगढ़ पे। मेहरगढ़ से ऊपर अगर आप टूल्स भी देखें, ये टूल्स टेक्सला के आपको शो हो रहे हैं बुक में। ये आपको जो टूल्स शो हो रहे हैं, ये टेक्सला के टूल्स हैं, जिसमें आपको हैमर भी नजर आ रही है और आपको ज्वेलरी भी नजर आ रही है, पोट्री भी नजर आ रही है। फिर आपको इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक की मशीन्स भी नजर आ रही हैं, जिसमें मिक्सर भी है, जूसर भी है, ड्रिलिंग की मशीन भी है, ये मिक्सिंग मशीन भी है। ठीक है, और यहाँ पे आगे ड्रिलिंग मशीन भी बनी हुई है। तो आप देख लें, एडवांसमेंट हो चुकी हुई थी उसमें। अब मेहरगढ़ से पहले एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चन इन दिस टेक्सला? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज वन बाय वन मुझे जवाब दिया करें। जी अनम्यूट कर लें सब।
Anyone who has any question? Ji Zainab, you can ask. No one wants to ask. लड़के कैसे बना? Ji Abdullah Ayaz. Fatima. Teacher. Ji. Teacher. Malik. Muhtashim, please turn on your video. Teacher. Kia, you have not turned on your video. Taha, please turn on your video. Ji student. And how to make the roofs? Teacher. 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 अब्दुल सुभान टीचर नहीं है अभी, रुक जाओ। क्या करें हम? रुक जाओ, टीचर आ जाएंगी। टीचर क्यों कह रही हूँ कि रुक जाओ?